नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है। दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को 1 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की जीडीपी 2014-15 में $2 ट्रिलियन थी, जो 2019-20 में बढ़कर $2.9 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कर्ज घटा है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया भर में भारत के प्रति नजरिया बदला है। ऐसे में एफडीआई और एफपीआई बढ़ा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है। Two things which I want to highlight here. Between 2005, 6 and 10 and 11, sir, every year there was an issue of oil bonds. The total of oil bonds issued is 1,40,000 crores. Total of oil bond. And that, compared to the GDP, then made up for 1.9% of the GDP then. Imagine what it would be today, but then it was 1.9% of the GDP then. Even today, we are paying annually, every year, 9,900 crores on these bonds as interest. That was the total number of bonds, the value of bonds for which we are paying the interest. All right, governments borrow, we have to pay interest. Understood, sir. Government's liabilities on oil subsidy. This is where I think we all have to see when we are talked down to about fudging of accounts. Government's liability on oil subsidy, sir, was shifted to the oil market companies so that their books appear nice and they don't have any kind of too much of overload. And the oil marketing companies were kept with this burden that after we have come out in 2014, we are taking that also. Contrast that, sir. Contrast that to what we are doing now. Contrast that to what we are doing. This is the budget presented in 2020-21, sir. We have shown both in the expenditure profile and the budget speech what extra budgetary borrowings are and where does this question of extra budgetary borrowing, particularly from the NSSF for food security, is also happening. We've shown it publicly. We've not hidden it, nor have we hidden it even from the speech. We've said that and also clearly mentioned at the bottom as to capital infusion for public sector banks, which was in July budget up to 70,000 crores, is also shown here. We've not fudged any of these accounts. We've not pushed it onto oil marketing companies. We've not, kept our books nice and clean and pretty, but we've shown everything where they should be shown. And therefore, sir, very clearly, we need to understand competent doctors. Yes. So then, flight of capital. Flight of capital, sir. 2013, 12-13. I'll just read out net FDI flows in crores of rupees every year which happened. The net FDI flows every year that it happened in US million dollars or in rupees, and the percentage growth over the previous year. Just to say, 2010-11, sir, if I have to read it in Indian rupees crores,
97,320 crores of rupees. 11-12, 1,65,146, and so on. Percentage growth over the previous year, sir, minus 36% happened in 2012-13. Literally, FDI ran out of this country between 2012 and 13, sir, minus 36%. And this is competent doctors holding the economy together. So then, we were told you have a predisposed mindset about FTAs. You don't want bilateral agreements, you don't want FTAs. Sir, the FTAs which were agreed during that time have been reviewed not just by us in the ministry, have been reviewed severally by several experts, have been reviewed by the much praised chief economic advisor who is often nowadays quoted by the opposition benches. Even he has said that FTAs are harming many of us. It's all right, sir? And if FTA is drafted during that time, negotiated during that time, I appreciate Commerce Minister today who's spending hours on FTAs and the impact it is having on Indian industry. For negotiating such FTAs, sir, I would want to appreciate today's response in the ground for the competent doctors. Today, no one wants us even to talk about bilateral because industry is scared, MSMEs are scared. The effect of some of the old-time FTAs are hurting them. And I have no hesitation in saying that such people should have an interaction with those who have agreed with those FTAs, sir. Competent doctors again. Sir, then I'll come back. The country is accused today. Oh, harassment. Harassment is happening. Criminalization of, the acts, IT acts and so on. I'll just quote the example of one act, sir. I'll just quote one example. In 2014, I was a Minister of State in Finance. Since then till today, the number of amendments that 2013 Companies Act is going through, you can ask anyone in this house, anyone here and there, the amount of work one has got to do for cleansing the Companies Act passed in 2013, which has such a lot of criminal elements. Till today, all of us are bearing the brunt, and our first 5 years have gone in. Yes, we are doing. Repealing is what is happening. The criminal repealing is what is happening. Nirmalaji, very bad. Sitting and commenting is very bad. Very bad. Sitting and commenting is very bad. Very bad. Everything sitting and commenting will not go on record. Will not go on record. Please carry on. All right, sir. Don't join issue. Don't join issue Companies Act. unless I permit. Thank you, sir. Yeah, please. Companies Act, Yes. sir. Yes. Companies This Act is Parliament. is written. This is not a primary school. I'm very happy for the comment. Thank you. Welcome the comment. Remember that. Remember that this is not a primary school. Very important lesson to all of us. Okay. Sir, yes, when we are talked Yes, down to to all. you, we have to be like a good student. Yes. But when the student gets up to speak, it's a bit difficult to accept. I agree. Sir, I was also told, oh, look, CIA today is telling you how to, remove criminalization from, the various acts. You must listen to them. I wish to say, sir, as soon as I tabled the budget, I went for a CIA forum and invited the CIA to say, please give me any suggestions which you want us to take up so that the criminal elements which have gotten into our statutes will be removed. I have offered it. Please do recognize that. Sir, I wish also to say this, that the defense budget is very poorly allocated. We've not given much at all. And the Ministry of Defense and the newly appointed COD, Chief of Staff, should all protest. Was mentioned in this house. They should protest was mentioned in this house. Sir, entire Defense Ministry was paralyzed. The defense of India was paralyzed. They didn't have an equipment.
And look at the way bulletproof dresses were not available. Please. Sit down. Don't join issue with them. Okay. You don't join issue. Please speak. Sir, the CAG report, which says about bulletproof vests for the soldiers, relates to what has not been bought during their time. And I, when I was there, had ensured every soldier gets bulletproof. And what about Rafale? What about Rafale? Why didn't they buy it? Why didn't they buy it? So, having paralyzed defense of India, it's very odd. A former minister wants the defense ministry to protest. I am shocked, sir, at the way in which governance is being treated. I am shocked. I can give with record when the bulletproof vests were bought. It was after Prime Minister came and he said it's shocking. First make sure that our soldiers get bulletproof vests. So it's all right to quote. Sir, then sir, we were made fun again. Toilets, Swachh Bharat Abhiyan. Madhya Pradesh example was given here, saying 46,365 toilets have disappeared. We were told that. I just want to say, sir, the state government of Madhya Pradesh has initiated a verification, formal verification process, and has responded to us to say, through the district collector, this is going on. So far, about 46,365 have been checked, and it has been found that only 649 were actually missing. Since all financial incentives in Madhya Pradesh has been paid through DBT, direct benefit transfer, over the past 3 years, any gap will be identified and filled on priority. Now this is Madhya Pradesh government responding to us. Appropriate action will be taken against all those found responsible for any missing toilet, is what is being said by them. Now the Department of Drinking Water and Sanitation is also following. Sir, there was also this, just as predisposed was attributed to us for 3 or 4 categories. I also heard the former minister repeatedly saying, ask us to believe. I want, please, the opposition, to believe your own state government. They have given this reply, sir. 46,000 gone, missing? Oh no. 649, about which Madhya Pradesh government is taking action. We would like to believe them. I'm sure they would want to believe them too. Sir, with a lot of sentiment, midday meals, you're not giving food to children, was thrown back at us. I like to tell you with data, sir. 2018-19, the actual expenditure on that scheme was 9,514.34 crores. All right, sir? Our government has been increasing allocations at every stage. We have kept BE for 2020-21 higher than the BE of 2019-20. And even the RE is considerably higher than the BE of 1920. In 18-19, sir, we had made a BE provision of 55,000 crores. And at RE, we increased it to 61,084 crores. The actuals were even higher at 61,815 crores. Just contrast this, sir, with just one fact from 2011-12. The BE was 40,000 crores then. RE was 31,000 crores. 40,000 BE comes down in RE to 31,000. And actually what it was,
And actually what it was 29,215. Sir, I am not very good in Hindi, but somebody said this is not even dikawa, it is chalawa. Good. I don't know, but if this is the way it is, I want to contrast this with the niyat of the Modi government, sir, where the BE, the actual, the RE are all increasing by stages, and the allotment and the actual for BE and the BE for 2020-21 is much higher. So I want to tell you that even the unspent balance has been kept in mind. So the other is on the midday meal. I hope I've said the actual figures there. Sir, RE of 2019-20 has been kept at 9,912.21 crore. The unspent balance is about 800 crore. Where has it gone? I'm telling you. The unspent balances of about 800 crores have all been adjusted this year itself, and the allocation made under 2020-21 is 11,000 crores like the BE. Not one paisa reduced on that. Sir, Shri Madhusudan Mistry, who's got a lot of experience looking into the budgets of Gujarat, and yesterday his elaborate speech very clearly highlighted very good points on which I'm duty bound to answer. Sir, the differences that Shri Mistry talked about are because of the difference between gross expenditure and net expenditure. Both depictions are correct. For example, sir, in the gross terms, the interest payments in BE 2020-21 is 7,33,203.15 crores. This reflects, sir, the total outgo from the Consolidated Fund of India. Parliamentary approval for this expenditure will be obtained at the time of passing of the demand for grants and the appropriation associated in the post-recess phase of this budget session. So that will explain it all. However, out of this amount, an estimated amount of 25,000 crore, which Shri Mistry correctly pointed out, will come into the Consolidated Fund of India as receipts. These receipts, sir, accrue because of the premium that the government debt issuance commands. They are the premium, and therefore there will be that difference. So then further, the impact on the total expenditure, sir, and on the fiscal deficit will only be the net amounts, not the gross. Since about 7.3 lakh crore is spent while 25,000 crores is received back, the net impact is only 7,08,203.16 crores. So that explains the difference in the figures which appear. So I'll come to the deficit, fiscal deficit related data, sir. It's very important. Under Prime Minister Modi, sir, fiscal discipline is maintained all through. Between 2014-15, 15-16, 16-17, and down till B 2021, I will just read out the fiscal deficit numbers, sir. 14-15, the fiscal deficit was 4.1%. 15-16, 3.9%. 16-17, 3.5, 17-18, 3.5, 18-19, 3.4, B 19-20, 3.3. Now, RE 19-20, 3.8, where we have used the forbearance in the FRBM Act and therefore used the window to escape clause. And we have shown a trajectory through which the glide path is established next year, that is 2020-21B. We have already put it at 3.5%. So, if this is what Prime Minister Modi and his government, respecting the FRBM Act, is showing as the deficit, consistently keeping it well within the limits which is allowed by the FRBM. FRBM is from 2003-04, sir. Let's just look at
2008-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, and 13 and 14, sir. I've given the trajectory between 14 till today. So let me also go back to look at 5 years. 2008-9, sir, 6.1%. 6.1%. 2008-9. 2009-10, 6.6%, going up. 2010-11, 4.9. 2011-12, I've read the future and present, and then only I've gone there, sir. Have the patience to hear it. 2010-11, 4.9%. 2011-12, 5.9%. 12-13, 4.9 again. And 13-14, 4.5. So, ours is a consistent list of coming down, and only when this extraordinary year, because of very many developments, have we used the window escape clause which the FRBM Act gives us. Also, there was a concern expressed. Your capital expenditure may go up, but your revenue expenditure is going up a lot more, which will mean that you won't be able to spend on capital expenditure, sir. Probably the Honorable Minister, former Minister, forgot non-debt capital receipts and only looked at the revenue receipts and therefore came to this conclusion. But I must here say, revenue expenditure going up always is not negative, sir, because revenue expenditure also includes expenditure on schools and hospitals. They are spent for human capital, and also in Government of India, all centrally sponsored schemes which total to 3.4 lakh crores are booked under revenue expenditure, a part of which, sir, is used for creating capital assets at the state level, which that itself is 2.1 lakh crores. So if of the revenue expenditure, which is centrally sponsored schemes, 3.4 lakh is going, 2.1 lakh is going for capital building, there is no way in which capital expenditure is coming down. In fact, I'd like to highlight the fact the overall expenditure of Government of India is gone up by 16.5% when we need this expenditure now, given the situation. And this figure is actual versus the RE, 18-19 actuals versus the 19-20 RE. And the capex has gone up, that is BE to BU, I'm comparing, 21% has increased. Capital expenditure has increased by 21%. And yet, more importantly, sir, maintaining this fiscal discipline, we have kept the fiscal discipline but not cut down. On the contrary, increased on capital expenditure. That is a specifically typical thing which I want to highlight of how governance is given importance by Prime Minister Modi. Capital expenditure has not suffered. Fiscal deficit has not been let loose. We are managing both. And that is the discipline which I want to be recognized. So there was this specific question by member from Kerala, Sri Ragesh. Borrowings by Kerala were decided on the basis of lower estimates. I need to inform him that borrowings by Kerala were decided on the basis of lower estimates of public account. This led to over-borrowings by Kerala, which has to be adjusted at the RE stage. Hence, in 2019-20, the borrowing ceiling fixed were revised downward. That is from 2019-20. That is the possible explanation that I can offer. 24,915 crore, it was revised down to, as you said, 16,600 some crores. और इससे पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों के सांसदों ने दूसरे दिन आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। AIADMK के एस मुत्तुकरुप्पन ने बजट में तमिलनाडु के लिए किए गए प्रावधानों के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की। TRS के डॉक्टर केशव राव ने कहा कि राज्य में GST टैक्स भरने के बाद भी अभी तक राशि नहीं मिली, जबकि CPI के बिनॉय विश्वम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह ने किसानों की हालत का मुद्दा उठाया। In the absence of finance minister, I should tell
that I respect her, not due to her economics, but for her tiresome work. She is a lady with integrity as far as I know it. And she desires to make the economy in right track. But the budget that she presented here was absolutely incapable to all those proclamations that she made here. Sir, this budget will be proven as a failed budget once again. Last time, she came with a budget, then weeks after weeks, she had to come with new and new budgets. The result is that, it was stated by Mr. Chidambaram also here yesterday, that the economy is now in the ICU. I beg to differ with him. The economy is not in the ICU. It has been taken to the ventilator already. For the ventilator, how can it come out? They have some panacea, some doctors, and their main panacea is that to privatize everything, to see that all the wealth of the nation is sold to the private profit mongers. And they have one more option, that is the FDI. So these two medicines are not going to help this economy, which is already in the ventilator, sir. Sir, let me quote from the resolution of a very important workers' organization of this country. It is not the AITUC which I represent, not the CITU which I support, not the INTUC which also I support, but this is from the BMS, Bharatiya Mazdoor Sangh, which is a very important contingent of the Sangh Parivar. In the resolution, BMS stated on this budget, which she presented here, LIC, which plays a great role in providing social security to the middle class, and IDBI that supports small industries, will cease to serve the society in needs once private profit mongers are brought in. It indicates that government is helplessly continuing to depend on the sale of national wealth for revenue generation, which is bad economics, according to none other than the BMS. It continues to say, a national discourse is required to find alternative modes of revenue generation, failing which all PSUs, thereafter all government properties will be sold for throwaway prices to run the government machinery. Sir, I fully support this position of the BMS, which is a part of the Sangh Parivar, and they know what's going to happen. Sir, this is the workers' voice. This is the workers' voice of the people. But you run to them, not to the workers, but to the FDI. You talk always about national sentiments, national pride, Swadeshi, and Bharat Mata. Sir, Bharat Mata is weeping today because you are now giving away national wealth for the foreign direct investments at throwaway prices. Vinayji, you have to close. Sir, I have 8 minutes, sir. Yeah, 5 minutes. No, nobody has given time. Now, accordingly, I have to. Sir, I have 8 minutes, please. Please, conclude. Sir, regarding the LIC, I want to make one statement. LIC, emotionally also, I am the son of a mother who served the LIC for 40 years proudly. And now you are saying it will be given to the private sector. Sir, what about education in the country? You are telling that in the educational field, FDI is most welcome.
in such a way. What about the peasants? The peasants are also very, very badly neglected in this. Sir, on the Manrega, about which we talk a lot, 10,000 crores of rupees are reduced. And that's the situation now. Sir, according to studies, 8% is the rate of growth of unemployment in rural India today. And then 10,000 crores less for the Manrega means if that situation will be worsened. Sir, the last 45 years, India witnesses unemployment the highest. Sir, the purchasing capacity of the people, the lowest in 60 years' time. Sir, the situation is so bad that the people are forced to commit suicide. The workers are committing suicide. The peasants' suicide continues. And you speak about a $5 trillion economy. How can it come true, sir? In this way, it can never reach that point. Sir, only if the economy can grow at the rate of 14% growth rate, this can be achieved. But you can never achieve. Sir, I can tell you one thing. You are telling the operation is successful. Yes, the Prime Minister, Finance Minister, all are telling you are doing the things in a very good way. I am claiming operation successful. Please conclude. But sir, the saying is that operation success, but the patient died. Right, thank you. The economy is dying, sir. So try to cut the economy, sir. Otherwise, the country will call you as the traitors. Always you say traitors and pride of the nation. In that name we say the nation demands a different economic policy. The people demand for changing the policies. Sri Veer The workers Singh. demands for that. Sri Veer Singh. Sir, with these words, I oppose the budget, sir. मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। महत्वपूर्ण अवसर होता है बजट के माध्यम से पिछले वर्ष क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, क्या रूपरेखा है, क्या रोड मैप है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मुझे याद है 2010 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी वो वित्त मंत्री थे और उस साल पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश हुआ था और ये बात उन्होंने गर्व के साथ ये कही थी। इस वर्ष का बजट तो उससे 3 गुना 30 लाख करोड़ का है, लेकिन वो हनक इस बजट के माध्यम से नहीं नज़र आती जो 2010 के बजट में थी। आर्थिक मंदी का दौर था उस समय भी और तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या दी थी कि किस तरह से क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने स्टिमुलस पैकेज 2,86,000 करोड़ का पेश किया था। ये उन्होंने बताया था, लेकिन आज तो हम कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि अर्थव्यवस्था को संभालने की आवश्यकता है। उल्टे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहा जा रहा है 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ 10% रहेगी। ये क्या आधार है इसका? कोई आधार नहीं नज़र आता। जो 15 मिनट यहाँ बताया लगातार त्रैमास में जो रिपोर्ट आई है 8.5% से लेके 4.5% तक गिर के आ गई है। जो IMF के रिपोर्ट के हिसाब से इस वर्ष 4.8% ही सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रहेगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि केवल 5% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि ये 6.1% रहेगी और अगले वर्ष के लिए इस जो बजट पेश किया है 20-21 के लिए उन्होंने कहा 6 से 6.5% जीडीपी ग्रोथ थी, तो 10% कहाँ से आया? तो ये मैं समझता हूँ कि इसके बारे में और जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, बात ना करें। जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी इसका हिसाब सर आएगा तो आप जवाब दें। इसका हिसाब भी बता दें।
मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। आपका जब मौका आए तो फिर हमको हिसाब बता दें कि किस तरह से जीडीपी ग्रोथ इस तरह से बढ़ेगी, जबकि प्राइवेट कंजम्पशन 7 साल में सबसे नीचे है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 17 साल में सबसे नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग 15 साल में सबसे नीचे है, टैक्स ग्रोथ 20 साल में सबसे नीचे है, फूड इन्फ्लेशन 6 सालों में सबसे ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे ज़्यादा है, रूरल कंजम्पशन 8.8% चिंताजनक कमी है, रूरल फूड कंजम्पशन 10% है, सेविंग्स नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है। अच्छा होगा, सलाह है कि वित्त मंत्री जी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें और विशेषज्ञों से राय लें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके वो इलाज करें और तभी जाके गोली ना दे। गोली देने की आवश्यकता नहीं है, गोली मारने की आवश्यकता, प्लीज गोली मारो। हर मामले में सबका साथ सबका विकास की बात आती है और मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी विकास की आवश्यकता है, लेकिन जो वास्तविकता है इस बजट के माध्यम से उनकी घोर उपेक्षा हुई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का उल्लेख किया था और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था उसी गैर बराबरी को खत्म करने के इरादे से की गई थी। संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, ये सोच के किया था कि हमें न्यायालय से आदेशों से प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम देख रहे हैं जो उत्तराखंड के मामले में हुआ कि राज्य सरकार ही खुद इस आरक्षण का विरोध करने बैठ गई। तो ये कभी कल्पना हम लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं की थी। सर्वे किया गया और उसमें देखा गया कि प्लान प्रोसेस के माध्यम से कितनी तरक्की हुई है। पाया गया कि तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन ये लाभ SC ST वर्ग को नहीं पहुंचा है। तो इंदिरा जी ने विशेष रूप से दलितों के, आदिवासियों के लिए 1976 में ट्राइबल सब प्लान शुरू किया, 1980 में शेड्यूल का सब प्लान शुरू किया ताकि गैर बराबरी दूर हो सके और जिससे मानकों की कमी पाई जाए उनके लिए विशेष योजना बना के उसको मानकों को पूरा किया जाए। मैनुअल स्कैवेंजर्स है, जैसे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है, छात्र है, युवा है, व्यवसाय है, फीस है, वजीफा है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, SC ट्राइबल आबादी का विकास है, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल इत्यादि जो उनको सीधा लाभ पहुँचे, ऐसी योजनाएं बनाने का प्रावधान किया गया। नरेंद्र यादव जी ने कमेटी बनी और उसने कुछ मानक तय किए। उसके हिसाब से कहा गया कि कुछ विभाग वो क्वांटिफाई करके अपना सब प्लान और TSP के लिए फंड देंगे और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती थी। लेकिन इस कमेटी की सिफारिश के बावजूद जो काम होना चाहिए था गंभीरता के साथ में, वो नहीं हुआ और आबादी के अनुसार बजट नहीं दिया गया। मांग उठाई गई, सबसे पहले अच्छा काम ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल का सब प्लान का महाराष्ट्र में होता था, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसमें कानून बना है। यहाँ से मांग आई कि हिंदुस्तान भर के लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन सरकार ने कानून बनाना दूर रहा, SC ST शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, इसी को खत्म कर दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात हो रही है, केवल सूची लगती है। मैं समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सामान्य योजनाओं पर खर्च हो रहा है, केवल एक्सपेंडिचर की बुकिंग हो रही है। मैं योजना कुछ बता रहा हूँ कि इसका मैं पूछना चाहूँगा कि इसका SC ST वेलफेयर से क्या ताल्लुक है। ऑप्टिक फाइबर केबल बेस्ड नेटवर्क फॉर डिफेंस सर्विसेज, सिल्क बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंटरेस्ट सब्सिडी टू फार्मर्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नाबार्ड के लिए अंश पूंजी, एक्जिम बैंक के लिए एक्स पूंजी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, रेल मंत्रालय को बजटीय सहायता, किसान सम्मान निधि, किसान बीमा निधि, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। एक भी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को छोड़कर बाकी जितने भी मिनिस्ट्री के जो बजट योजनाएं हैं, इसी तरह के फर्जीवाड़ा और धोखा देने की बात इन्होंने की है। तो इसमें विशेष रूप में चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें और ट्राइबल सब प्लान को दोबारा लागू किया जाए। सीधे तौर पर दलित आदिवासियों को सुधारने वाली योजनाएं, उनके स्वास्थ्य को सुधारने वाली योजनाओं को लेकर आए, तभी जाके होगा। और मैं अभी शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड ट्राइबल सब प्लान दोनों को दोबारा बहाल किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। और मैं बस आधी मिनट में बात खत्म करूंगा। बहुत बधाई दी गई कि बहुत बधाई है, बार बार बधाई दी जा रही थी, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 49.6% ये कटौती की गई है। हॉस्टल फॉर स्टूडेंट 72% कटौती की गई है। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 56% कटौती की गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 16.66% कटौती की गई है। नेशनल फेलोशिप स्कीम में 16.66% कटौती की गई है। टोटल एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन डेवलपमेंट 38.48% कटौती की गई है। और जो बजट खर्च हो रहा है, जो बजट पार्टी के टाइम ले रहे हैं, जो बजट खर्च हो रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। बजट तो कम है ही, लेकिन खर्चा भी कम है। मैं बहुजन समाज पार्टी और अपनी नेता बहन मायावती के आशीर्वाद से इस आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, वर्ष 2020-2021 के आम बजट में गांव, कृषि और किसानों के लिए 16 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा की गई है, परंतु आज हमारे देश में जो 70% जनता कृषि से जुड़ी है, आज किसानों का पूरे देश में बुरा हाल है। बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं किसान, क्योंकि हर सरकार प्रयास करती है कि किसानों को उन्नत किया जाए, आत्महत्या से रोका जाए, किंतु इस पर हम कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आज हमारे देश का किसान बहुत दुखी है। सरकार ने कई बार वायदा किया कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। 2022 तक, पिछली बार कहा था 1.5 गुना करेंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे। ना तो किसानों को आज तक उनकी लागत का 1.5 गुना मिला और ना आय दुगना करने का कोई विकल्प तलाशा जा रहा है सरकार की तरफ से। सिर्फ वायदे किए जाते हैं किसानों के लिए, किंतु आज तक किसानों को जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया गया सरकार के माध्यम से। आज किसानों की जो फसल है उस पर जो उत्पादन लागत आती है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि उनकी फसल का उनको वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। आज केंद्र सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए पूंजीपति उद्योगपतियों को तो राहत दे दी, पर किसानों के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। खाली वायदे किए जा रहे हैं। मेरा मानना है यदि हमें अपने देश की तरक्की करनी है, और देश की तरक्की गांव, खेत, खलिहान से होकर गुजरती है। यदि किसान खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा, तो शहर खुशहाल होगा, और जब शहर खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। आज किसान के पास उतने आय के साधन नहीं है कि वो अच्छा मकान बना सके, सही ढंग से रह सके। जब उसकी हालत सुधरेगी, वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो वो मकान बनाएगा, अच्छी शादी करेगा, व्यापारी के पास जाएगा सामान खरीदने के लिए, तो बाजार भी खुशहाल रहेंगे। आज हमारे पूरे देश में किसान भी परेशान है और छोटा व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि वो खाली बैठा है व्यापारी। वो इसलिए आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आज छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग समाप्त कर दिए गए।
उन्हें समाप्त करके पूरा का पूरा ध्यान सरकार का उद्योगपतियों की तरफ है, पूंजीपतियों की तरफ है। जो 90% जनता, 70% जनता खेती पर निर्भर है, उधर कोई ध्यान नहीं है। और खेती से जुड़े हुए जो मजदूर लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मनरेगा पर 10 करोड़ रुपया बजट में कम कर दिया, जिस पर करोड़ों मजदूर रोजगार पाते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक तरफ तो सरकार गरीबों की बात करती है और एक तरफ गरीबों पर जो बजट जाना चाहिए उसको धीरे धीरे समाप्त करती चली जा रही है। आज हमारे देश में बेरोजगारी 40 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई आज कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा MA BA कर डिग्री लेकर भी खाली घूम रहा है। वो इधर का रहा ना उधर का, उससे तो अच्छा अनपढ़ है, कम से कम मजदूरी तो कर लेता है, किंतु MA BA डिग्री करने के बाद उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो सड़कों पर घूम रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में आ रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई तो बेकार गई। सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। मनरेगा जैसी योजनाओं को समाप्त किया जा रहा है, उस पर बजट कम किया जा रहा है। तो सरकार को मानना चाहिए कि बेरोजगार को खत्म करके उनको रोजगार देना चाहिए। सरकार ने वायदा किया था पिछली बार भी कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5 साल में 10 करोड़ देंगे। वो 5 साल चले गए, जुमलेबाजी में चले गए कि ये तो हमारा जुमला था। फिर शुरुआत हो गई, अभी तक कोई नौकरी सरकार की तरफ से बेरोजगार को देने का कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया गया है। तो मेरा मानना है, सुझाव है कि वित्त मंत्री जी से कि ऐसी योजना लाएं जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। आज आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। अभी चर्चा चल रही थी, कल भी इस पर न्यायालय का सहारा लेकर प्रदेश की सरकारों ने आरक्षण समाप्त किया है। और सरकार की नीयत तो SC ST OBC के आरक्षण को बिल्कुल समाप्त करने की है। एक तरफ तो केंद्र सरकार SC ST OBC की बात करती है, एक तरफ उनका आरक्षण समाप्त कर रही है, क्योंकि सारे सरकारी विभागों को आज प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। वो भी गिने चुने पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। क्या देश को बेच करके आप क्या लोगों को न्याय दिला पाएंगे? क्या लोगों को रोजगार दिला पाएंगे? आज समाप्त किया जा रहा है रोजगार को, क्योंकि सारा का सारा चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है देश को। आज SC ST OBC के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, जब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान बनाते समय आरक्षण की व्यवस्था की थी, आज जो आरक्षण समाप्त हो रहा है, SC ST OBC का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज उनके बच्चों को आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेंगी। आपकी मंशा का हमें पता नहीं चल रहा है कि आप क्यों SC ST OBC के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी नौकरियां क्यों खत्म कर रहे हैं, उनको क्यों बेरोजगार बना रहे हैं। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा मानना है कि आप प्राइवेट सेक्टर को दो, किंतु प्राइवेट सेक्टर में देते समय आरक्षण की व्यवस्था करो। हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की नेता ने, हमने कई बार आपसे पूछा है कि आप आरक्षण खत्म तो करते चले जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में देते तो चले जा रहे हो, किंतु आप आरक्षण क्यों नहीं कर रहे? इस पर आप कोई जवाब नहीं देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में कोई जवाब नहीं दिया। जब बहन मायावती जी ने सवाल पूछा था क्या आरक्षण आप प्राइवेट सेक्टर में देते समय क्या आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो आपने आरक्षण नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप SC ST OBC के हितैषी हैं, यदि आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में देते समय आरक्षण करना चाहिए, आरक्षण लागू करना चाहिए। यदि आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो आपकी नीयत साफ झलक रही है कि आप SC ST OBC के हितैषी नहीं हैं, आप उनको नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, आप पूंजीपतियों से हितैषी हैं। आज शिक्षा का क्या हो रहा? शिक्षा क्या हो रहा? शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आपने शिक्षा को भी प्राइवेट करना, उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया। तो शिक्षा में भी आपने गरीबों के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं किया है। आप शिक्षा देश में एक समान होनी चाहिए। आज गरीब का बच्चा योग्य होते भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आपने आज जो एडमिशन होते थे वो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जाता था। एडमिशन के समय आपने एडमिशन 0 बैलेंस पे कर दिया। आज गरीब के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। आज जो पूंजीपतियों के स्कूल हैं वो कहते हैं कि पहले आप फीस जमा करो तब एडमिशन होगा। तो मेरा निवेदन है कि उसको
उसको जो है आप जो है जीरो बैलेंस खत्म करके फीस पहले भेजिए, जिससे कि गरीबों के बच्चों का एडमिशन हो सके। दूसरा, आपने आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। राइट। इसलिए आज गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, आरक्षण के आधार पर होनी चाहिए। लोकसभा से आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पर उन्होंने चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में बदलाव का प्रावधान है। इस विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आंध्र प्रदेश में विभिन्न पेट्रोलियम परियोजनाओं में तेजी लाने को उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राज्यसभा में सभापति के कक्ष में उनसे मुलाकात की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनसे आंध्र प्रदेश में सभी पेट्रोलियम परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन में तेजी लाने की बात कही। फिरोजाबाद जिले के नगर शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले श्रम विभाग द्वारा व्यापारियों की पेंशन के लिए प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना शिविर शिकोहाबाद के बड़ा बाजार गुड़ मंडी में लगाया गया। शिविर का उद्घाटन जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर और सुशील पैगोरिया द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जिलाध्यक्ष अनिल मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया, आज कैंप सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि ये हमारी योजना पूरे जनपद में कैंप लगवाने की है। इससे क्या व्यापारियों को लाभ मिल सके। जो 18 साल से 40 साल तक की उम्र के व्यापारी है उनको पेंशन योजना के तहत आ जाएं और उन्हें 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाए। जिससे क्या उनके जैसे शरीर शिथिल होता है तो कभी बच्चे भी सहयोग नहीं करते हैं, तो कम से कम सरकार के द्वारा 3000 रुपये महीने तो मिलेगा, उसके आधार पर उनका काम चलेगा। इसलिए हमारा अपना मानना यह है कि हर व्यापारी को जो 18 साल से 40 साल तक का है उसको इस योजना के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। व्यापारी किस तरह लाभ उठाएगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगी कागजों की? व्यापारी को सिर्फ आधार कार्ड और बैंक के पासबुक चाहिए और कोई किसी कागज की आवश्यकता नहीं। अभी आपके शिविर में रजिस्ट्रेशन कराएगा, अगर शिविर खत्म हो गया फिर कैसे लाभ मिलेगा उसको, कहाँ जाएगा? उसके लिए CSC केंद्र बने हुए हैं, जन सेवा केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर जाए और अपने अपलोड करा के और सबको अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। जरूरी नहीं है कि शिविर में काम, CSC केंद्र में भी हो सकता है। व्यापारी की 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर माह उसे 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। और तो और यदि व्यापारी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसकी पत्नी या बच्चे को या नॉमिनी को 50% भुगतान आजीवन किया जाएगा। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सुशील पैगोरिया ने बताया, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष माननीय अनिल मैनेजर के आह्वान पर हमारी शिकोहाबाद के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और अन्य दयाशंकर जी भाई साहब, आपके सुभाष गुप्ता जी, अन्य लोगों ने प्रेरित होकर व्यापारियों के हित की एक योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानधन योजना जो प्रारंभ की है, जिसमें कि हम व्यापार मंडल की ओर से बहुत समय से ये मांग हो रही थी कि हम व्यापारी पूरा जीवन सरकार को टैक्स के रूप में बहुत सारा धन देते हैं, लेकिन जब आयु हमारी 60 साल की हो जाती है, शरीर निर्बल हो जाता है, तो सरकारी तंत्र को तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ धनराशि सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन जो व्यापारी लाखों रुपया टैक्स के रूप में दे देता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम व्यापारियों की, हम व्यापार मंडल की इस बात को सुना और व्यापारियों के लिए एक योजना प्रारंभ की कि 60 साल की उम्र के बाद जब उनका शरीर शिथिल हो जाता है उस समय स्वयं की निर्भरता, स्वयं मतलब स्वावलंबन रहे, इसके लिए उन्होंने एक पेंशन योजना प्रारंभ की है। जिन व्यापारियों का 1.5 करोड़ प्रति वर्ष से कम व्यापार है, जिसमें कि अधिकांश मैं समझता हूँ देश के करीब 70 से 75% व्यापारी आते हैं, उन सब के लिए एक योजना प्रारंभ की है जिनकी
उम्र 18 साल से लेके 40 साल तक की उम्र है, उनको सिर्फ 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उनको दिए जाने हैं और उनको 60 साल की उम्र के बाद में 3000 रुपए प्रति मास के हिसाब से और पेंशन यह मिलेगी भारत सरकार के द्वारा, यह उनको दी जाएगी। इस प्रकार से व्यापारियों को अपनी आयु की शिथिलता होने पर किसी भी प्रकार से अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने समस्त व्यापार मंडल के यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के सभी व्यापारी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है, इसमें अधिक से अधिक अपने रजिस्ट्रेशन करा के और इस योजना का लाभ उठाएं। रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना है, आपका बैंक का खाता है वो खाता नंबर लाना है, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके खाते से अपने आप ही 55 रुपए प्रति मास के हिसाब से कटना प्रारंभ हो जाएंगे और आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं पुनः सभी व्यापारियों का यह आह्वान करता हूं कि इस योजना का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा के लाभ उठाएं। जो भी भाई हों, व्यापारी हों, श्रमिकों के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं, कोई दुकान पर काम करता है उसके लिए भी इस प्रकार की योजना है, श्रमिकों के द्वारा भी इस प्रकार से इसका लाभ उठाया जा सकता है और 3000 रुपये प्रति मास के हिसाब से 60 वर्ष के बाद में और यह प्राप्त हो सकता है। मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से पुनः यह करना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा संशोधन करना चाहिए। 40 साल से अधिक आयु के जो व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40 साल से आज बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, जब ये योजना लागू हो रही है कि जो 40 साल से उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन उनके सामने भी यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि किस प्रकार से 60 साल के बाद में और हम स्वावलंबी बने रहेंगे। तो मेरा भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पुनः यह गुजारिश है, यह उनसे निवेदन है कि किसी भी रूप में 40 साल से अधिक के व्यापारियों के लिए भी इस योजना का लाभ देने का कोई भी प्रावधान किया है। कैंप में नगर के दर्जनों व्यापारियों ने अपना पंजीकरण कराया और देर शाम तक पंजीकरण का सिलसिला चलता रहा। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी शिवशंकर पाल ने जानकारी देते हुए बताया, यहाँ पर प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 से 40 साल के उम्र के सभी व्यापारियों एवं श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। कैंप के माध्यम से व्यापारी मानधन योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी प्रचार प्रसार किया गया। इसमें सभी प्रकार के श्रमिक भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर दयाशंकर गुप्ता, कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ जॉनी, अजय मित्तल, अरुण कुमार गुप्ता, मुकेश गौड़ के अलावा अन्य व्यापारी वर्ग मौजूद थे। प्रतापगढ़ के बाबागंज प्राथमिक विद्यालय चौरंग में सोमवार सुबह तकरीबन 10 बजे इंचार्ज अध्यापक धीरेन्द्र कुमार खड़े होकर बच्चों से झाड़ू लगवा रहे थे। हालांकि गांव में सफाई कर्मी की तैनाती है। 10 बजे तक सहायक अध्यापक आलोक कुमार विद्यालय नहीं पहुंचे। विद्यालय में 58 बच्चों का पंजीकरण है, लेकिन 35 बच्चे ही स्कूल पहुंचे थे। विद्यालय में चल रहे आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री मंजू देवी, सहायिका रेखा देवी भी विद्यालय में मौजूद नहीं रही। विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने से अभिभावकों में आक्रोश है। बच्चों से झाड़ू लगवाने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेकर डीएम मार्कंडेय शाही ने बीएसए को शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर बीएसए ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक धीरेन्द्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बीएसए का कहना है कि बच्चों से झाड़ू लगवाने का मामला बेहद संवेदनशील है। शिक्षक को कारण बताओ नोटिस देते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि सही कारण न बता पाए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही अब इसकी गूंज दिल्ली से निकलकर अन्य राज्यों में पहुंच रही है।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही और चुनाव परिणाम आते ही कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। इसकी एक वानगी फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में देखने को मिली। तेल मिल कंपाउंड एटा चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यालय पर दिल्ली में तीसरी बार मिली ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण करके जश्न मनाया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश आप यूथ विंग नेता उदयराज सिंह ने कहा कि जनता ने काम को स्वीकार करके जुमलेबाजी और फर्जी राष्ट्रवाद को हराया है। अब अच्छी शिक्षा, फ्री इलाज, यूपी मांगे केजरीवाल नारे के साथ हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कमर कसेगी। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि पहले से ही ज्ञात है कि जो है दिल्ली में जो है हमारे जो पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अप्रत्याशित काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए, और जो एक स्वच्छ राजनीति की जो एक अलग से जो एक मुहिम जो देश में खड़ी की है कि उसको लोगों ने वहाँ स्वीकार किया है। उन्होंने मुहर लगाई है कि जो है एक्चुअल में जो जनता का जो काम करके जो है आप जो चुनाव जीत सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो फर्जी मुद्दे जो अन्य पार्टियों द्वारा जो फैलाए जा रहे थे, उन जो फर्जी राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो जुमलेबाजी का मुद्दा है, उस जुमलेबाजी को पूरी तरह से इस चुनाव में जो है जनता ने नकारा है। अच्छा, विपक्ष फेल हुआ है तो किन किन मुद्दों को लेकर फेल हुआ है? विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी काम न करना है। वो ज़्यादातर उनकी जो है कि बातें ज़्यादा करना है और काम के नाम पर जो शून्य है। आप यूपी या किसी भी राज्य में जहाँ पर भी अन्य विपक्ष की, बीजेपी की या किसी की सरकार है, वहाँ आप देखिए तो काम के नाम पर शून्य, काम नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है हवाबाजी करके, जुमलेबाजी करके चुनाव जीतना चाहते थे, जिसको जनता ने पूर्णतः वहाँ दिल्ली में निकाल दिया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी का 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा। 13 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो बीजेपी में किसी पद के लिए नहीं जा रहे हैं और वो अपनी ही पार्टी में जा रहे हैं। 17 फरवरी को आयोजित विलय समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और ओपी माथुर भी शामिल होंगे। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को उसके शेष जीवन के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने ठाकुर को 20 जनवरी को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया था। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को सजा पर बहस पूरी कर ली थी। महान राजनीतिक चिंतक, एकात्म मानवतावाद के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि दी। पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इस मौके पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके देश के महान समाजसेवी नेता और राष्ट्रनिष्ठ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा में अगाध आस्था थी। अपने सनातन नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के दलित दुर्बल वर्गों के उत्थान के निमित्त समर्पित कर दिया। दुर्बल वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ समाज के दूरस्थ लक्षित वर्गों को सहज और सरलता से उपलब्ध कराना ही दीनदयाल के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर संकल्प लें कि समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को सक्षम बनाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास की मूल धारा में बराबर का भागीदार बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।